ایک دن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، تمہارے پیارے صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اب صرف 7 دن زندہ رہیں گے اور 7 دن بعد ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے یہ خبر پا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو بلایا اور فرمایا، اے میرے صحابیوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے پیارے صحابی بلال اب صرف 7 دن زندہ رہیں گے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے ابھی تک نکاح کی سنت ادا نہیں کی ہے، اس لیے تم لوگ جاؤ مدینے کے ہر گھر میں جا کر دیکھو کہ کوئی اپنے بیٹی کا نکاح میرے اس پیارے صبی سے کرنے کو راضی ہے یا نہیں۔ لیکن سن لو، تمہیں اس باپ کو یہ بات ضرور بتانی ہوگی کہ بلال صرف 7 دن اور زندہ رہیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نکل پڑے۔ وہ لوگوں سے کہتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی بلال کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں، کیا آپ اپنی بیٹی بلال کے نکاح ہمیں دیں گے؟ پہلے تو لوگ کہتے، کیوں نہیں، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم اپنی بیٹی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی کے نکاح میں دیں۔ لیکن جیسے ہی حضرت علی اور حضرت عمر بتاتے دھیان رہے بلال صرف 7 دن اور زندہ رہیں گے، تو لوگ منع کر دیتے، نہیں، اگر وہ صرف 7 دن زندہ رہیں گے تو ہم اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کریں گے، ہم نہیں چاہتے کہ 7 دن بعد ہماری بیٹی بیوہ ہو جائے۔ ایسے ہی 7 دن تک کسی نے بھی اپنی بیٹی کا نکاح حضرت بلال سے کرنے کو منظور نہیں کیا۔ آخرکار حضرت علی اور حضرت عمر تلاش کرتے کرتے مدینے سے باہر ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا ایک آدمی جھوپڑی بنا کر رہ رہا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، کیا تمہاری کوئی شادی لائقہ بیٹی ہے؟ وہ آدمی بولا، ہے اللہ کے نیک بندو، آپ میرے جیسے غریب کے گھر کیوں آئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ حضرت علی اور حضرت عمر نے جواب دیا، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت بلال کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں۔ وہ آدمی بولا، اگر ایسا ہے تو میری ایک یوگیہ بیٹی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسے شخص کے ساتھ اگر میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں تو یہ تو میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ لیکن حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، دیکھو، ایک شرط ہے اور یہ بات ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ضرور بتانے کو کہا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ اب صرف 7 دن زندہ رہیں گے، اس کے بعد اس دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر اس آدمی کا چہرہ بدل گیا اور اس نے کہا، نہیں تو پھر میں اپنی بیٹی کا نکاح بلال سے نہیں کروں گا۔ 7 دن بعد اگر میری بیٹی بیوہ ہو گئی تو میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا۔ لیکن یہ پوری بات ایک لڑکی دور سے سن رہی تھی، وہ اسی آدمی کی بیٹی تھی۔ باپ کے منہ سے یہ باتیں سن کر وہ آگے بڑھی اور بولی، ابا جان، میں اس نکاح کے لیے راضی ہوں۔ آپ کیسے اس پیغام کو ٹھکرا سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجا ہے؟ ابا جان، میری زندگی میں چاہے جتنی مشکلیں آ جائیں، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا چاہتی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر کچھ گھنٹے بعد دونوں کا نکاح ہو گیا۔ رسول کے پیارے صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور اس لڑکی کا نکاح کے بعد حضرت بلال نے اپنی نئی دلہن سے کہا، پریہ پتنی، میں تم سے جاننا چاہتا ہوں، تمہیں معلوم تھا کہ میں صرف 7 دن زندہ رہوں گا، پھر بھی تم نے مجھ سے نکاح کیوں کیا 7 دن بعد؟ تو تم بیوہ ہو جاؤ گی۔ دلہن نے جواب دیا، میرے پتی سنیے، میں اپنی جان دے کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنا چاہتی ہوں، اس حکم کو مان کر میں خود کو خوش نصیب مانتی ہوں، اور آپ کے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی کو پتی پانا کسی بھی عورت کے لیے بہت بڑی دولت ہے، اور الحمدللہ میں وہ عورت ہوں۔
फिर 7वें दिन हजरत बिलाल ने अपनी पत्नी से कहा, बीवी आज रात ही मेरा इंतकाल होगा। मौत से पहले मेरा मन हो रहा है कुछ रोटी खा लूं। तुम पड़ोसी के घर से थोड़ा आटा ले आओ और मेरे लिए रोटियां बना दो। पत्नी ने 7 रोटियां बनाई और उनके सामने रखी। इतने में घर के बाहर एक भिखारी ने आवाज दी, एलिक, मैं कई दिनों से कुछ नहीं खाया हूं, बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। हजरत बिलाल ने जब देखा कि दरवाजे पर भूखा इंसान खड़ा है तो उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के बजाय सारी रोटियां उसी भिखारी को दे दी। भिखारी ने वहीं दरवाजे के पास बैठकर रोटियां खाना शुरू कर दी। जब हजरत बिलाल का वक्त मौत आया तो मलाकुल मौत हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। लेकिन जैसे ही वह घर में दाखिल होने लगे उन्होंने देखा कि दरवाजे के बाहर एक फकीर बैठा है जिसने रास्ता रोक रखा है। अजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए फकीर, तुम यूं दरवाजे पर बैठकर रास्ता क्यों रोके हुए हो? मुझे अंदर जाने दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं बिलाल की रूह कब्ज कर लूं। फकीर ने जवाब दिया, अजराइल अलैहिस्सलाम, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जब कोई खाना खा रहा हो तो उसे तंग नहीं किया जाता? क्या तुम देख नहीं रहे हो? मैं यहां बैठा रोटी खा रहा हूं। वो फकीर किसी तरह भी दरवाजा छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिरकार हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम वापस अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए और बोले, ए अल्लाह, मैं आपके प्यारे बंदे हजरत बिलाल की रूह लेने गया था लेकिन घर में दाखिल नहीं हो सका। दरवाजे पर एक फकीर बैठा था, रोटी खा रहा था और उसने रास्ता रोक लिया। मैं उसे छोड़कर अंदर नहीं गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए इज़राइल, दरवाजे पर जो बैठा खा रहा है वो मेरा बहुत प्यारा बंदे है। देखना उसके साथ कोई बेअदबी ना हो। तुम उससे अदब के साथ पूछो कि वो क्या चाहता है। अगर उसकी कोई ख्वाहिश हो तो उसे पूरा करके फिर बिलाल की रूह कब्ज करना। हुक्म पाकर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम दोबारा बिलाल के घर के सामने पहुंचे। देखा वही फकीर दरवाजे पर बैठा है और रोटी खा रहा है। अजराइल अलैहिस्सलाम बोले, अल्लाह के प्यारे बंदे, बताओ तुम क्या चाहते हो? क्या करूं जिससे तुम दरवाजे से हट जाओ? अल्लाह ने कहा है कि जो तुम चाहोगे वही किया जाएगा। फकीर बोला, बिलाल ने मुझे 7 रोटियां दी हैं और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो एक नेकी करता है उसे 10 गुना इनाम मिलता है। तो मैं चाहता हूं इन 7 रोटियों के बदले बिलाल को 70 साल की जिंदगी और दे दी जाए। अजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह तो मुमकिन नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हुक्म दिया है कि बिलाल की रूह कब्ज करूं। मैं उनकी उम्र कैसे बढ़ा सकता हूं? हाँ, इसके अलावा तुम जो चाहो अल्लाह तुम्हें दे देंगे। फकीर बोला, नहीं, मुझे दुनिया का कोई माल दौलत या आराम नहीं चाहिए। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी बिलाल की उम्र 70 साल और बढ़ा दी जाए। अजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी यह मांग मैं पूरा नहीं कर सकता। फकीर ने जवाब दिया, अजराइल, अल्लाह ताला ऐसा कोई काम नहीं है जो ना कर सके। अगर अल्लाह बिलाल की उम्र 70 साल नहीं बढ़ाएंगे तो मैं भी 70 साल यहीं बैठा रहूंगा और रोटियां खाता रहूंगा। इस तरह ना तुम अंदर जा पाओगे ना ही उनकी रूह कब्ज कर सकोगे, क्योंकि मैं यहां से हटूंगा ही नहीं। रसूलुल्लाह ने एक हदीस में फरमाया, इस दुनिया में अल्लाह ताला के ऐसे कुछ बंदे होते हैं कि अगर वे अल्लाह ताला के नाम पर कसम खाकर कोई बात कह दें तो अल्लाह ताला जरूर उनकी बात पूरी करते हैं। हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु के दरवाजे के सामने जो फकीर बैठे थे वे थे अल्लाह और उसके रसूल के दीवाने। हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह। जब हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु की उम्र
बढ़ाने की मांग रख दी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मांग पूरी किए बिना ना रह सके। अल्लाह ताला ने हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाया, ए मलाकुल मौत अज़राइल, मेरे प्यारे बंदे ओवैस करनी ने एक मांग रख दी है और मैं यह मांग पूरी ना करूं, यह कैसे हो सकता है? ए अज़राइल, तुम लौट आओ। मैंने अपने बंदे ओवैस करने की मांग मंजूर कर ली है और हजरत बिलाल की उम्र में 70 साल का इजाफा कर दिया है। एक बार खलीफा एक खास हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन हजरत अली रदी अल्लाह अनु को साथ लेकर कूफा शहर की तरफ रवाना हुए। कूफा पहुंचकर उन्होंने लोगों को पुकार कर कहा, ए कूफा वालों, क्या तुम में कोई मुझे उवैस करनी का पता बता सकता है? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खास हिदायत पूरी करने के लिए हमें अल्लाह के इस प्यारे बंदे की सख्त जरूरत है। कूफा वालों ने कहा, हुजूर, हम तो ऐसे किसी शख्स को नहीं जानते। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हो ने कहा, क्या तुम में कोई ऐसा है जिसका घर कर एक इलाका में है? तब एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, मेरा घर में है। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या तुम किसी ओवैस करनी नाम के शख्स को जानते हो? उसने कहा, हुजूर, मैं एक आदमी को जानता हूं, लेकिन वह वही हैं जिन्हें आप तलाश कर रहे हैं। यह मैं नहीं जानता। वह एक अजीब मिजाज के इंसान हैं। लोग हंसते हैं तो वह रोते हैं, लोग रोते हैं तो वह हंसते हैं। ऊंट चराते हुए दिन गुजारते हैं। उनके कपड़े फटे पुराने और मैले होते हैं और अक्सर लोगों की नजरों से उझल रहते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तुम हमें उसी शख्स के पास ले चलो, हम ऐसे ही इंसान को तलाश कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उनके तमाम निशानियां बता दी हैं और तुमने जो निशानियां बताई हैं वही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। फिर वह शख्स उन्हें लेकर चल पड़ा। हजरत उमर और हजरत अली रदी अल्लाह अन उस फकीर से दीवाने शख्स को खोजते हुए एक सुनसान जगह पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा नमाज अदा कर रहा है। हजरत उमर और अली रदी अल्लाह अन्मा उसके पास खड़े हो गए। जब उसने नमाज खत्म की तो उन्होंने उसे सलाम किया। उसने सलाम का जवाब देकर कहा, आप लोग कौन हैं और किस मकसद से मेरे पास आए हैं? उन्होंने कहा, हम अल्लाह के नबी के सहाबी हजरत उमर और हजरत अली हैं। हम अल्लाह के एक प्यारे बंदे को ढूंढ रहे हैं। क्या आप मेहरबानी करके हमें अपना नाम बताएंगे? वह व्यक्ति बोला, मेरा नाम अब्दुल्लाह है, यानी अल्लाह का बंदा। हजरत उमर ने मुस्कुराकर कहा, हम भी तो अब्दुल्लाह हैं, हम सभी अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि आपके माँ बाप ने आपका असली नाम क्या रखा था। तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम वायस रखा था और लोग मुझे कुरन का रहने वाला होने के कारण वायस करने कहते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने अदब से कहा, अल्लाह के प्यारे बंदे, क्या आप मेहरबानी करके हमें अपना दाहिना हाथ दिखाएंगे? वायस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। उन्होंने देखा कि उसमें कुष्ठ रोग का एक निशान है, बिल्कुल वैसा ही जैसा नबी करीम ने बताया था। पक्का यकीन हो जाने पर हजरत उमर और हजरत अली ने उनका हाथ चूम लिया और कहा, ए अल्लाह के बंदे, हम तो आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं। वह बोले, आप लोग मुझे इतनी मेहनत से क्यों खोज रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंतकाल से पहले हमें नसीहत की थी कि उनकी मुबारक जुब्बा आपको पहुंचा दें, और यह भी कहा था कि वायस करनी से कह देना कि वह मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। वायस करनी ने विनम्रता से कहा, देखिए, आप लोग तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी हैं।
दुआ करने के लिए आप ही काफी हैं। आप ही उम्मत के लिए दुआ करें। उन्होंने कहा, हम तो हमेशा उम्मत के लिए दुआ करते हैं, लेकिन नबी ने खास तौर पर आपसे यह इल्तिजा करने के लिए कहा है। वायस करनी ने सिर झुकाकर कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबियों, उनकी मुबारक जुब्बा का अमानतदार बनने की हैसियत मुझ जैसे गुनहगार पागल और साधारण बंदे में कहा। मैं कैसे इसकी हुर्मत और इज्जत निभा सकूंगा। उन्होंने जवाब दिया, जब नबी ने आपको यह अमानत दी है तो उन्होंने आपके लायकियत को जानते हुए ही कहा होगा, आप इसे कबूल कीजिए और उम्मत के गुनहगारों के लिए दुआ कीजिए। फिर हजरत वायस करनी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुब्बा ली और कहा, आप लोग यहीं ठहरे, मैं अपने दयालु रब से तन्हाई में कुछ बातें कर लूं। इतना कहकर वह एक पेड़ के नीचे गए, सजदे में गिर पड़े और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगे और फिर गहरी मुनाजात करने लगे। ए अल्लाह, तेरे प्यारे हबीब ने अपनी मुबारक जुब्बा मेरे पास भेजी है और यह भी कहा है कि मैं उनकी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ करूं। हबीब ने अपना फर्ज पूरा कर दिया। हजरत अली और उमर रदी अल्लाह अन्मा को जिम्मेदारी दी, उन्होंने भी अपना फर्ज पूरा कर दिया। और तेरे प्यारे हबीब ने मुझे भी एक जिम्मेदारी दी है कि मैं उनकी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ करूं। तो ए रहमत वाले, मैं तेरे प्यारे हबीब के वास्ते उनकी तमाम गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ करता हूं, तू उनको माफ कर दे। इस दुआ पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए उवैस, तू सजदे से सर उठा। तेरी इस दुआ की बरकत से मैंने उम्मते मोहम्मदी का एक हिस्सा माफ कर दिया। ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए अल्लाह, जब तक तू सारी उम्मत को माफ नहीं करेगा मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा और तेरे प्यारे हबीब की जुब्बा भी नहीं पहनूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ओवैस, तेरी दुआ की वजह से मैंने उम्मते मोहम्मदी का 1/3 गुनाह माफ कर दिया, अब तू सजदे से सर उठा। ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर कहा, ए अल्लाह, जब तक तू अपने प्यारे हबीब की पूरी उम्मत को माफ नहीं करेगा मैं सजदे से नहीं उठूंगा और उनकी जुब्बा भी नहीं पहनूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ओवैस, तेरी दुआ की वजह से मैंने उम्मत के आधे गुनाह माफ कर दिए, अब तू सजदे से सर उठा। ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए अल्लाह, तू पूरी उम्मत को माफ कर दे तभी मैं सर उठाऊंगा। उधर हजरत उमर और अली रदी अल्लाह अन्मा काफी देर से खड़े खड़े थकने लगे, यहां तक कि थोड़ा बेचैन हो गए। फिर उन्होंने सोचा, देखें तो ओवैस करनी क्या कर रहे हैं। जब वे पास पहुंचे तो ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का ध्यान टूट गया। उन्होंने अफसोस के साथ कहा, अगर आप लोग बस एक लम्हा और रुक जाते तो मैं अल्लाह से सारी उम्मत के गुनाह माफ करवा लेता, लेकिन आपके आने से मेरा ध्यान टूट गया और मैं वो मुकाम हासिल नहीं कर सका। यह सुनकर हजरत उमर और अली रदी अल्लाह अन अफसोस करने लगे और तौबा की, ए अल्लाह, तेरे प्यारे बंदे का ध्यान तोड़ने के लिए हमें माफ कर दे। फिर हजरत अली रदी अल्लाह अन ने ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, ए अल्लाह के बंदे, आप अल्लाह के रसूल से इतनी मोहब्बत करते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी में मदीना आकर उनसे मुलाकात क्यों नहीं की। ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, आप लोग तो हमेशा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहते थे, जरा बताइए उनके मुबारक चेहरे पर जो भय थी वह जुड़ी हुई थी या उनके बीच में फसला था। तब हजरत उमर और अली रदी अल्लाह अन ने कहा, है अल्लाह के प्यारे सहाबी, हमने तो उनके सम्मान और मर्यादा के ख्याल से कभी उनकी ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा। वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कभी नहीं देखा, फिर भी मैं कह देता हूं कि उनके चेहरे मुबारक की भौहें मिली हुई थी। मेरा दिल बहुत चाहता था कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करूं।
लेकिन मेरी एक माँ थी जो बहुत बूढ़ी और बीमार थी। उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं था, इसलिए उन्हें छोड़कर मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने कभी नहीं जा सका। इसके बाद उमर रदी अल्लाह अन्हु ने वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया, आप अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ कर दीजिए। वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं किसी शख्स के लिए खास तौर पर दुआ नहीं करता, मैं तो हर नमाज के बाद यही दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सारी उम्मत जो ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत हो उन्हें माफ फरमा दे। अगर आप ईमान के साथ इस दुनिया से जाएंगे तो आखिरत में मेरी यह दुआ आपको ढूंढ लेगी। तब उमर रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, जनाब क्या मैं आपके गुजारे के ये कूफा के गवर्नर को एक खत लिख दूं ताकि हर महीने आपको एक तय रकम मिलती रहे जिससे आप आराम से जिंदगी गुजार सकें। वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 दरहम दिखाते हुए कहा, यह 2 दिरहम मैंने ऊंट हाँकर कमाए हैं, क्या आप मुझे यह जमानत दे सकते हैं कि इन्हें खर्च करने तक मैं जिंदा रहूंगा? अगर जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं दे सकते तो फिर आपका नजराना लेने की क्या जरूरत? उमर रदी अल्लाह अन्हु यह सुनकर आंसू बहाने लगे और बोले, अल्लाह के बंदे, इस दुनिया में किसी की मौत की गारंटी कौन दे सकता है? अफसोस हम लोग दुनिया में इतने पागल और मशगूल हो गए हैं। आप जैसे अल्लाह के प्यारे मासूम बंदे मौजूद हैं, तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके वसीले से हमें रोजी देता है। अगर आप जैसे लोग ना होते तो अल्लाह ताला हमें एक बूंद पानी भी ना देता। वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अब आप लोग मुझे इजाजत दें, मुझे हमेशा लोगों की नजरों से दूर रहना पसंद है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल पर नहीं हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए डेली इसी तरह का वीडियो में लाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। खुदा हाफिज।